یہاں پہ دکھانے کی ضرورت ہے, یہاں پہ سوچنے کی ضرورت ہے. طاقتور سردار, نواب, چیف آف جہلوان, پھر اللہ تعالیٰ اس کو چیف منسٹر بنا دیتا ہے. چیف منسٹر بنانے کے بعد نواب ثناء اللہ بھی ہے, نواب ثناء اللہ وہ ہے, نواب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا. اچانک فیصلہ ہوتا ہے کہ نواب ثناء اللہ کو ایک کمزور بندہ, ایک بچہ جو نہ ایم پی اے ہے, ڈپٹی اسپیکر ہی چھوڑ دیا, کوئی اس کو کلرک نہیں بنانے کا شوق تھا, انڈر ٹیبل کوئی, اللہ تعالیٰ اس کو لاتا ہے, چیف منسٹر بناتا ہے. واہ کیسے یار ثناء اللہ کو گرا. اللہ کہتا ہے میں بتا رہا ہوں کہ طاقتور کو نکال رہا ہوں, ایک کمزور کو لا رہا ہوں, تم عبرت رہو میری قدرت کو دیکھو. آؤ جام کمال صاحب کا ابھی بڑے بڑے طاقتور پاکستان کا جو کرتا دھرتا ہے اس کے ساتھ ہے. اب جام صاحب کو کوئی نہیں نکال سکتا. قدوس ختم ہو گیا, وہ اس نے اپنے آپ کو برباد کر دیا. اس نے اس کا ہر جگہ پہ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں, سوتا ہے. کسی نے سوتے ہوئے دیکھا ہے؟ بھائی سوتا رہتا ہے, پتہ نہیں کیا کرتا رہتا ہے. ایک بندے کو میں نے نہیں کہا, یہاں پہ اتنے ایم پی کہیں کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ آؤ عدم اعتماد میں ہم اکٹھے ہو جائیں گے, سب آئے. اللہ نے اسی گھر میں بھیج دیا جس کو کہتے تھے یہ ختم ہو گئے, جس نے برباد کر دیا. سب کو اکٹھا کیا. ثنا بلوچ جو بات گفتار کا ایسا ماہر ہے, اگر وہ باتوں کو شروع کرے میرے خیال میں یہاں پہ 40 گھنٹے بھی بیٹھے ہم لوگ کو بور نہیں ہوں گے, کیونکہ ماشاءاللہ اللہ نے اتنا زبان کا اس میں مٹاس رکھا ہوا ہے. تو وہ سب ادھر ہی چلے جاتے ہیں. سارے سردار, جس کا ہمارے پاس ایک گن میں نہیں ہے, سردار صاحب کو تھی وہ سب کا سیکورٹی بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کو باہر جانے نہیں دینا, ان کو اکٹھے رکھنا سردار. اسی لیے ایک سردار بھی ہمیں وہ دے دیتا ہے بندوق والا کہ سب کو ایم پی ایس کو باہر جانے نہیں دے, تاکہ باہر کوئی ان کو لے جا کے یہ مہم جو میں کر رہا ہوں اس کو وہ کرنے. ایسے جوڑ دیتا ہے, اکٹھے جوڑ دیتا ہے سارے لوگوں کو, اس گھر میں لے جاتا ہے جو بالکل عوام کے نظروں میں بالکل وہ بیکار ہو گیا, ناکارہ ہو گیا, نااہل ہو گیا, لیکن اللہ تعالیٰ سب کو ادھر جوڑ دیتا ہے, وہاں پہ بٹھا دیتا ہے. آپ لوگوں کو پتا ادھر بھی سوتا تھا نا, کبھی آپ لوگوں سے ملا نہیں ملا, لیکن آنکھیں بند کر دیا تھا اللہ نے کہ سوتا بھی ہے جو بھی کرتا ہے, لیکن اللہ نے اس کو یہاں پہ لایا اور چیف منسٹر بنا دیا. یہاں پہ جام یوسف صاحب آتے ہیں. جام یوسف کی کاموں کو دیکھ کے, اس سے پہلے مجھے پتا نہیں ہے, اس سے پہلے میں بہت چھوٹا تھا, بچہ تھا, مجھے پتا ہی نہیں تھا. والد کہتا جس کو کوئی گٹر میں پھینکے تو جاتا ہے. یہاں پہ عبرت, یہاں پہ ہمیں قدرت, اللہ کا قدرت نظر آتا ہے, لیکن ہم ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں, شاباشی دیتے ہیں. جام یوسف, اس کا باپ جام غلام قادر صاحب, او ہو کیا بندہ تھا, یہ دیکھ, یہ اس کا حالت دیکھ. اچھا تم اس کے بعد بات کرو, اگلا جام لاؤں گا وہ تم کو سبق دے گا. بابا اللہ کا نظام کی, اللہ نے اس کو اچھا بنایا برا بنایا, وہ اللہ جانے اس کا بندہ, کیا پتا وہ اچھا تھا برا تھا, کیا پتا جام صاحب نہیں, جام یوسف صاحب سے جام غلام قادر بڑا اچھا تھا. جو سینئر ادھر میرے خیال اس نے جام کریم نوشروانی والے میرے خیال جام غلام قادر کے دور کے یہاں پہ نہیں ہے. ملک صاحب میرے خیال جام غلام قادر کا ہے, ملک سکندر صاحب 85 میں تھے, 85 میں نہیں تھے. تو جام غلام قادر کے دور, او ہو جام صاحب بڑے اچھے, جام یوسف صاحب کا حال نہیں تھا. پھر رحسانی صاحب آتے ہیں. رحسانی صاحب کو اللہ تعالیٰ بڑا بردباری اور مقام دیتا ہے, اور اس نے ایک اچھا کام کیا جو ہمارے لیے, میں آگے چل کے مجھے یاد دلانا اگر بھول گئے پر ڈسکس کر دو. یہ جو اپنا ڈیسیجن لیا ریکودک کے حوالے سے, یہ اسی کے میرے ان محنت ہے. آج 300 ارب روپے ہمارے صوبے کے انکم میں آ رہے ہیں. تو رحسانی صاحب کی تعریفیں شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو ایسے امتحان میں گزارتا ہے, اے رحسانی صاحب یہ نہیں کرتا, دیکھو کیسے ہو گیا. اللہ کہتا ہے میں کہتا ہوں کہ تم لوگ عبرت لو, تم نے ایک دم تعریفوں سے ایک دم اس کے کریکٹر پہ آ گئے, اس کو کریکٹرلیس کرنے شروع کیا, ایک دوسرے کے اپنا عزت خراب کرنے کے شروع. ایک دن تم لوگ کہتے اچھا ہے, دوسرے دن کہتے یہ پتہ ہے تم کو دکھا رہا ہوں, تم لوگ اور چیزوں میں پڑے رہتے. پھر آتا ہے ڈاکٹر مالک صاحب جو باتیں کرتے ہیں بڑے بڑے, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں. اللہ کہتا ہے تم کہتے ہیں میں کروں گا نا, آ جا. اس کو لاتا ہے, بٹھاتا ہے اس امتحان کی کرسی میں, اب کر دکھا. تم کر سکتے ہو نا, تم کہتے میں یہ کروں گا. اللہ جس کو چاہے اس کو عزت دے گا, اس کی نیت کے مطابق دے. اگر نیت صاف ہوگا بالکل اللہ تعالیٰ, اگر نیت خراب ہے, جن کا نیت خراب ہے وہ جتنا باغ دوڑ کرے گا اتنا ہی اللہ ان کو ناکام اور نامراد کرتا ہے. اس کو کبھی عزت نہیں دیتا. نیت پہ دار و مدار کہ مجھے لوگ تعریف کریں, تعریف تمہیں کریں گے تو اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا تم کو.
डॉक्टर मालिक साहब बिल्कुल, ओह इससे तो पहले वाला जाम यूसुफ भी अच्छा था, इससे तो नवाब रैसानी से बहुत अच्छा था ना, वो तो आखिरी टाइम पे भी जो इम्तिहान में था वो भी उस दौर भी अच्छा था। फिर लाता है नवाब सनाउल्लाह को, यहाँ पे दिखाने की जरूरत है, यहाँ पे सोचने की जरूरत है। ताकतवर सरदार नवाब चीफ ऑफ जहलवान, उसके सामने उसके बच्चे दुनिया से चले जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। फिर अल्लाह ताला उसको चीफ ताकतवर की को निकाल रहा हूँ, एक कमजोर को ला रहा हूँ, तुम इबरत रहो मेरी कुदरत को देखो, तुम लोग इसको तारीफों पे लगे। फिर जब वो काम करता है 6 महीने में क्या कर सकता है, 6 महीने में कुछ भी नहीं हो सकता। या अल्लाह 6 महीने में क्या कर सकता हूँ मैं, कहाँ इंसान को अपने लोगों को 6 महीने में क्या अपना नाम दिखा सकता हूँ। अल्लाह 6 महीने को ऐसा मुतबर कर देता है, लोग तारीफ, वाह यार कैसे 6 महीने में इसने बड़ा कमाल किया, बड़ा इसने ये किया, कुली कचेरी लगाया, बाजारों में गया, ड्रामे किया, ये किया वो किया कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कैमरामैन को अपने पीछे भगाया, ये ड्रामे किया वो ड्रामे किया। अल्लाह ने उसको मुतबर कर दिया, अल्लाह ने सबके सामने दिखा दिया। फिर लोग ने तारीफ शुरू किया, वाह यार बड़ा अक्लमंद है, बड़ा ये बाबा इसके बाप को पता था ये बेकले, तुम कैसे कहते हो अक्लमंद है। उसको वो यकीन नहीं करता जिसने दुनिया ने उसको, अल्लाह ने उसको जरिया बनाया इसमें लाने के लिए। मैं अपने कुदरत दिखा रहा हूं, आप लोग अपने एक दूसरे की तारीफ में लगे हुए हैं। फिर वो कहते हैं बड़ा अक्लमंद है। अब ये बात करने वाला हूं जो मेरे हिस्ट्री में मेरे साथ रहा है, किसी को पता नहीं, आज इस ऐवान में भी किसी को पता नहीं। 3 बेवकूफों ने, कई बेवकूफों ने, जो मैं अपना बच्चा समझता था, इनको अपने घर का किसी की ईमा पर, और पकड़े भी गए, देखा भी मैंने सारी चीजें, सब चीजें देखा। मुझे 3 साल तक ऐसा बेवकूफ बनाए, ऐसे रगड़े दिए, क्या क्या नहीं दिए मुझे, स्लो पॉइजनिंग क्या, ये किसी के वो नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से। अल्लाह कहता है ना बड़ा अक्लमंद है ना, बेवकूफों ने इसको बेवकूफ बना 3 साल, इसको पता ही नहीं चला, ये इसकी हैसियत है। मैं 2 मिनट में इसको ताकत देता हूं, तो 2 मिनट में अकल देता हूं, तुम लोग इसको सर पे चढ़ाते हो, तारीफों पे तारीफें। अल्लाह ने मुझे ऐसा, मैं आपको बताऊं इस ऐवान में ये रिकॉर्ड रहे कि अल्लाह कभी भी किसी भी इंसान को ऐसे इम्तिहान में कभी नहीं डाले जो मैं 3 साल में रहा हूं। आप लोगों की नजरों में जो भी था, लेकिन मैं जिस इम्तिहान में किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाता, ये अल्लाह ने ये रखा हुआ था मेरे लिए। फिर आते हैं, एक दिन आता है कि जाम साहब, हर वक्त उसको खौफ होता है, मुझे खुद का जाम साहब का नाम नहीं लेता जो लास्ट चीफ मिनिस्टर, क्योंकि वे करेक्टर होते हैं ना, हम लोग एक दुनिया में एक चीजों को एक दूसरे को, हम नहीं है, ये अल्लाह का कुदरत है, एक चीजों को दिखाता है। फिर जाम साहब आता है, जाम साहब, लोग कहते हैं यार जाम यूसुफ क्या सरदार केतरान साहब, आपको याद है उस टाइम हम लोग कहते थे बड़ा जाम गुलाम कादिर, आज जाम कमाल ने हमें जब दिखाया, अल्लाह किसका वालिद यार जाम यूसुफ फरिश्ता था। अच्छा भूल गया जाम गुलाम कादिर को, इससे ये जाम उसका कसूर नहीं है, जाम कमाल का कसूर। अल्लाह ने कहा अच्छा मेरे बंदे को तुमने कहा खराब है, अब पता चलेगा खराब क्या है। ये दिन ब दिन हम समझते हैं ना, नया वजीर आला आता है उससे बदतर क्यों होता है, वो हमें बताता है कि अगर इसके लिए तुम कहते हो खराब है, अगला और तुमको हमारे ईमान और हमारे इन चीजों का में चेक कर रहा है। हमारी हम एक दूसरे, हम कैसे कहते खराब है, अगर हमने इसको खराब किया अगला और खराब हो जाएगा। किसी को आप लोगों ने कह दिया कि वो खराब है, अल्लाह ताला और इम्तिहान में डालता है कि मेरे बंदे को तुम कौन होते खराब कहने वाले। अगर आज हमने नहीं सुधरे इस असेंबली में या बलूचिस्तान के लोग, हमने किसी को कहा ये खराब है, अगला वजीर, आपने देखा जितने वजीर आला है अगले वजीर आला से खराब निकलते गए। क्योंकि अल्लाह कहता है कि मेरे बंदे को खराब कहोगे, मैं खराब दिखाता हूं, खराब होता क्या है। अगर इससे आगे खराब अगर हमारे सामने आ गया तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये हमारे आज सुधरने का दिन है, अल्लाह की कुदरत को मानने, किसी की तारीफ करना है तो उसको बर्बाद कर, दुश्मन का तारीफ कर। अगर दुश्मन मेरा तो कोई नहीं है, मैं किसी को दुश्मन, जो चीज होता है अल्लाह की तरफ से होता है, अल्लाह ने हमारे ऊपर लाना है। अगर आप लोग किसी को समझते हैं कि तारीफ करना है, उसका कर जो अल्लाह उसके लिए इम्तिहान लाए। अगर जिसके दोस्त हो तो उसकी मुखालफत कर, अल्लाह ताला और ऊपर ले जाता है। जैसे मैं हूं, मैं आपको बताऊं कैसे हूं जी। जाम कमाल साहब, आओ जाम कमाल साहब को अभी बड़े बड़े ताकतवर पाकिस्तान का जो करता धरता है उसके साथ है, अब जाम साहब को कोई नहीं निकाल सकता। कुदूस खत्म हो गया, वो उसने अपने आप को बर्बाद कर दिया। उसने उसके भाई कुदूस को क्या पता तुम्हारे बेचारे के साथ क्या गुजर रहा है, कभी किसी ने देखा है किसी के सामने उसको किसी चीज के करते हुए? वो करता है नहीं करता अल्लाह जाने, उसका बंदा जाने, हमें कौन होते हैं? उसको बेचारे को हर जगह पे डंडोरा पीट रहे हैं,
सोता है, किसी ने सोते हुए देखा है? भाई सोता रहता है, पता नहीं क्या करता रहता है। कमरे में क्यों बंद हूं? मैं आज बताता हूं कमरे में क्यों बंद कर दिया। आप लोगों ने बंद कर दिया। ईमान, मेरे लोगों ने मुझे, ईमान बड़ा मजबूत है। अल्लाह कहता है ईमान मजबूत है, जा आज ईमान का मैं आपका वो लेता हूं, इम्तिहान लेता हूं। तो अब आता है अचानक जाम साहब के जहन में आता है कि कुद्दूस खत्म हो गया, अब उसको कोई नहीं निकाल सकता। कुद्दूस ने बर्बाद कर दिया, अपने वालिद का नाम बर्बाद कर दिया, अपने तबाह कर दिया, ये कर दिया। और यहाँ पे मेरा एक मिनिस्टर को निकाला जाता है और उसको कहा जाता है जो तुम डिसीजन लेगा, अभी भी आप हैं, अगले 5 साल के लिए आप हैं, आप किसी के पीछे जो करना है आपको किसी का बाप भी नहीं हिला सकता है। अचानक एक मामला होता है, वही जो कैरेक्टर नाम दिया जाता है, यहाँ पे अल्लाह अपना काम करता है, नाम दिया है कुद्दूस का, वो एक अपना निजाम दिखा रहा है। उसको जो कहता है कि ये खत्म हो गया, अल्लाह ताला पूरा बलोचिस्तान, एक बयान देता है सारे बलोचिस्तान, एक बंदे को मैंने नहीं कहा, यहाँ पे इतने एमपी कहें कि मैंने उनको कहा था कि आओ अदम एतमाद में हम इकट्ठे हो जाएंगे, सब आए, अल्लाह ने उसी घर में भेज दिया जिसको कहते थे ये ना खत्म हो गए, इसने बर्बाद कर दिया, सबको इकट्ठा किया। सना बलोच जो बात गुफ्तार का ऐसा माहिर है, अगर वो बातों को शुरू करें, मेरे ख्याल में यहाँ पे 40 घंटे भी बैठे हम लोग को बोर नहीं होंगे, क्योंकि माशाल्लाह अल्लाह ने इतना जुबान का उसमें मिठास रखा हुआ है। तो वो सब उधर ही चले जाते हैं। सारे सरदार, जिसका हमारे पास एक गन में नहीं है, सरदार साहब को थी वो सबका सिक्योरिटी बना देता है अल्लाह ताला कि इनको बाहर जाने नहीं देना, इनको इकट्ठे रखना सरदार। इसीलिए एक सरदार भी हमें वो दे देता बंदूक वाला कि सबको एमपीएस को बाहर जाने नहीं दे, ताकि बाहर कोई इनको ले जाके ये मुहिम जो मैं कर रहा हूं उसको वो करने। ऐसे जोड़ देते हैं, इकट्ठे जोड़ देता है, सारे लोगों को उस घर में ले जाता है जो बिल्कुल अवाम के नजरों में बिल्कुल वो बेकार हो गया, नाकारा हो गया, नाअहल हो गया, लेकिन अल्लाह ताला सबको उधर जोड़ देता है, वहां पे बिठा देता है। फिर वहां से कहा जाता है कि ये आखिरी बंदा होगा, हम इसको गोली मारेंगे, इसको तो नहीं छोड़ेंगे। मैं एक बड़े सरदार का नाम नहीं लेता, मैं बोलता यार उन्होंने कहा कि इसको आखिरी बंदा होगा, गोली मारेंगे, हम ऐवान में पहुंचने नहीं देंगे। अल्लाह कहता है अच्छा मेरे बंदे को तुम ऐसे हल्का समझ रहे हो, मेरा बंदा है, मैं जानू मेरा बंदा जाने, तुम कैसे हो इसको रोकोगे? उनके सामने स्ट्रेचर पे इस काबिल नहीं रहता है कि वो बजे। वहां पे भी आज ये कहते सोता है ना, आप लोगों को पता उधर भी सोता था ना, कभी आप लोगों से मिला नहीं मिला, लेकिन आंखें बंद कर दिया था अल्लाह ने कि सोता भी है, जो भी करता है मैं इसको लाऊंगा उधर जिधर ये कहते हैं हम रोकेंगे। बड़े बड़े हमारे मजहबी रहनुमा भी उधर थे, एमपीए थे, किसी को आंखों में नजर नहीं आया कि बंदा करता क्या है क्या नहीं करता है, लेकिन लाया। अल्लाह को पता था पहले क्या करता था, बाद में क्या करे, अल्लाह के निजाम में हमें पता नहीं है क्या वो क्या करता है। अल्लाह को पता नहीं था वो क्या कर रहा है, सोता रहता है। जब चीफ मिनिस्टर बना है अल्लाह को पता नहीं आगे क्या करना है, उसको पता था क्या करता है, लेकिन अल्लाह ने उसको यहां पे लाया और चीफ मिनिस्टर बना दिया। अच्छा इससे पहले, अच्छा इसका बाप का दुआओं की नतीजा है, बाप का बड़ा इसने वो किया, बाप इसका बड़ा उल्मा, अल्लाह ने मेरे बाप छीन लिया। कई लोगों ने कहा कि इसके अच्छा इसका वालिद पहले था, इसकी दुआओं के नतीजे से आया है। अल्लाह कहता मैं अपना खुद रद्द कर रहा हूं, तुम लोग अपनी तारीफों में लगे, अल्लाह ने वालिद छीन लिया, बस अब आके दिखा दे, अल्लाह ने लाके दिखा दिया, सामने सबके लाके दिया, और कहता है अभी वालिद भी नहीं। अच्छा इसको अवाम का दुआओं का है, गरीबों का दुआ, अल्लाह ने मुझे कमरे में बंद कर दिया, गरीबों से मिलना बंद कर दिया। 1 साल हुआ मैंने किसी गरीब को नहीं देखा, किसी ने मां का दुआ है, 4 महीने हुआ उम्र से आई हुई है, मैं नहीं मिल सकता हूं, अल्लाह का हुक्म नहीं है कि मैं मिलूं, लोगों को दिखा रहे। अच्छा मां का दुआ है, मैं अपना कुदरत दिखा रहा हूं। फिर सब एमपीएस को आंख बंद कर देता है देखने के उससे कि ये एक बंदा उधर बैठा हुआ, अवाम, ये अवाम कभी भी सबर का वो नहीं है, जिस दिखाता है अवाम निकलते हैं हमारे हक दो, वो उनको भी खामोश करता है। लेकिन कहीं पे चीजों को जो अपने आप को समझते हैं वो कामयाबी दे सकते हैं, नाकामी भी दे सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, किसी को बचा सकते हैं, वो परेशान है। यार ये सब कुछ सोता भी है, अवाम भी खामोश है, असेंबली भी खामोश है, बंदा खराब है, बंदा भी है। भाई अल्लाह का कुदरत है, दिखा रहा है, क्यों हम नहीं समझ रहे हैं, क्यों अल्लाह की कुदरत से मुकाबला कर रहे हैं हम, क्यों अल्लाह के निजाम में मुदाखलत कर रहे हैं। अल्लाह अपना निजाम दिखा रहे हैं, आप हम ताकत दिखाते हैं हम लोग एक दूसरे को। और 1 साल अपने कमरे में बंद करता है, एमपीए को नवाजता है, एमपीए को
फंड देता है, एमपी ई टेंडरिंग करवा देता है, फिर कहता है अच्छा ईमान मजबूत है, मेरिट कर। तमाम पोस्टें पब्लिक सर्विस कमीशन में थे। बोलता अब डर ज़हन में आया, हर ई टेंडरिंग करूंगा और ये करूंगा तो ये एमपी मुझे मार देंगे, निकाल देंगे। अच्छा तुम्हारा खुदा इधर भी है, ये तुमको निकाल भी सकते हैं, मैं नहीं निकाल। 1 साल से बंद किए हुए कमरे में तुमको कोई आपका बाग बीगा नहीं कर सकता है। तुम कहते हैं मुझे एमपी निकालेंगे, मुझे अवाम मारेंगे, मैं प्लान नहीं करेंगे। फिर मैं ई टेंडरिंग करता हूँ पागलों की तरफ, मैं मेरिट के उसका ऐलान कर देता हूँ। अब नवाजता है, इन एमपी को नवाजा है, उनके इख्तियार जितने थे टेंडर पे था और पोस्टों पे था वो तो दे दिया। अब एमपी मिनिस्टर बनेगा तो क्या काम करेगा, किस तरह? ये मैं आज आप लोगों को एमपी साहबान, मैं आप लोगों से मुआज़रत करता हूं कि जो मैंने किया बिल्कुल जो निज़ाम हमें दिया गया उस निज़ाम में इस चीज़ की गुंजाइश नहीं था। हमें कहा जाता है जा अपने निज़ाम में अवाम से वोट लें। हमारे अवाम कहते हैं कि भाई हमारा, उनको वोट का कीमत का पता नहीं है, उसको शऊर नहीं है कि मेरा वोट की क्या कीमत है। वो क्या करता है, अपने जब हम उसके पास जाते हैं वोट के लिए, क्या कहता है, हमारा वोट तो टकरी के पास है, मीर के पास है, वडेरा के पास है, मलिक के पास है, चौधरी के पास है। भाई चौधरी साहब वोट बिल्कुल मेरे पास 2000 वोट हैं, दूंगा, लेकिन मुझे 10 नौकरी मेरे फैमिली के लिए, 20 नौकरी गरीबों के लिए, 30 नौकरी मेरिट पे नहीं डायरेक्ट हमको देगो। नहीं चौधरी साहब ये नहीं हो सकता, रास्ता वो है। चौधरी साहब देंगे, ठीक है, जब हम देंगे। मीर साहब आजान है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।